Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, everybody. सभी जन को परमेश्वर की स्तुति हो। And today indeed it is indeed an awesome day, and we have gathered once again as the body of Christ in the Lord Jesus Christ, as one body in the Lord Jesus Christ. Amen. और आज का दिन जो है वो सचमुच एक अद्भुत दिन है और आज हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक होकर हम आए हैं, इसलिए आमेन। Amen. You Amen, know, amen. before it was a time when we used to gather in different churches and different denominations under four walls and under a roof, and we had labels from this church and that church. और सब इससे पहले हम इकट्ठा होते थे यहाँ इस जगह पे उस जगह पे और अलग अलग विभागों से और अलग अलग तरीकों से हम मिलते थे और चार दीवारों के बीच में हम मिलते थे और वहां पर सभी जने के पास लेबल होता था कि इस कलीसिया का उस कलीसिया का। लेकिन आज But because of this corona today, लेकिन आज कोरोना की वजह से we are logging into any kind of a denomination, no matter what label we have, but we make sure that they are led by the Holy Spirit. Amen. और आज चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन के हो या किसी भी कलीसिया के हो या किसी भी पंथ के हो, लेकिन आज हम किसी के साथ भी हम जुड़ सकते हैं और ये जानते हुए कि वो लोग जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। Amen. That's the only thing that we see. हम बस इतना ही देखते हैं And we are all gathered together as one body, the Lord Jesus Christ. और हम सभी जन प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक होकर हम इकट्ठा होते हैं। Amen. Let us go quickly into today's word, because today's word is going to change your life completely. Hallelujah. और आइए आज के वचन में हम जल्दी से चले जाए, क्योंकि आज का जो वचन है आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। हालेलुया। Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. I can hear an amen over here. देखो मैं यहाँ पर आमेन सुन सकता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Let us all before I go into today's word, I'll just tell you the main topic that we are, and that is that smooth stone. और ये आज के वचन में जाने से पहले आज का जो मुख्य विषय है, मैं उसका विषय का नाम लेता हूँ, वो चिकना पत्थर। Amen. Turn to somebody and say once again, that smooth stone. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो वो चिकना पत्थर। Once again, come on, that smooth stone. चलो फिर एक बार वो चिकना पत्थर। Amen. This message talks about people who are chosen by the Lord, whom God has called, and how God prepares them. और ये जो संदेश है वो उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और कैसे परमेश्वर उन्हें तैयार करता है। Amen. It is the journey of that stone from which David used to kill Goliath. और ये उस पत्थर का पूरा सफर है जिस पत्थर को दाऊद ने इस्तेमाल किया था गलियात को मारने And के how लिए। when God chooses you, how He dislodges you, how He puts you into His flow, and how He brings you to the exact location where He has to shape you for David's sling. Hallelujah. This is the sling of the Lord Jesus Christ. और ये जो है पूरा सफर है उस पत्थर का जो उस बड़े पर्वत से अलग होता है और कैसे परमेश्वर उसके बहाव में आपको ले जाता है और आपको उस जगह तक ले आता है और वहां पर वो आपको चिकना बनाता रहता है जब तक दाऊद का हाथ आके आपको उठाकर उस गोफन में इस्तेमाल नहीं करता, और वो गोफन है प्रभु यीशु मसीह का गोफन। Amen. Amen. Amen, amen. So, before we go into the main message, I'll just read the main verse, and then we'll pray, and we'll go into today's word. और देखो आज का मुख्य वचन लेने से पहले, मुख्य संदेश लेने से पहले आइए आज का जो मुख्य वचन है उसे हम पढ़ेंगे और उसके पढ़ने के बाद हम दुआ करके आज के संदेश में हम चले जाएंगे। Proverbs 22, everybody, and verse 6, everyone. नीति वचन इसका 22वां अध्याय वचन 6। Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. और आपको आपके घरों में जोरों से कहना है, नीति वचन इसका 22वां अध्याय वचन 6, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उन्हें चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेंगे। Amen. Genesis chapter 3 and verse 12, everybody. उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 12। And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. और उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 12, और आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Let us all pray, everybody. और आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर दुआ करें। Thank you, Lord, my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord, for thou art a faithful God and Lord, there is none like thee, O Lord, my God. और धन्यवाद परमेश्वर, में सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ और सारा धन्यवाद से आप ही को देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा दूसरा विश्वासु और कोई नहीं है परमेश्वर। Just, Lord, my God, today we come to you the way we are, Lord. और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं But we परमेश्वर। come to become more like you and to change according to your plan and purposes for our lives, Lord. और लेकिन हम बदलने के लिए आते हैं परमेश्वर, आपके योजनाओं के अनुसार हम बदलने के लिए आपके पास आए हैं Let the परमेश्वर। Holy Spirit of God speak to our lives, speak to our hearts, speak to our conditions, speak to our situations in which we are struggling, oh Lord my God, and trying to do something in your kingdom, Lord my God, and in our lives. और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हमसे आज आप बातें करो परमेश्वर,
परमेश्वर हमारी स्थिति से, हमारे परिस्थिति से परमेश्वर, हमारे जिंदगी से परमेश्वर, हमारे मुकामों से परमेश्वर, और हमारे उन स्थितियों से बातें करो परमेश्वर जिसमें हम झगड़ रहे हैं और हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे take परमेश्वर, charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो Though we परमेश्वर। come to you the way we are, but we come to change and to get upgraded and to become more and more just like you, the way you want us to be. और हाँ प्यार परमेश्वर, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर हम बदलने के लिए, बदलाव के लिए, आपके जैसे और बनने के लिए और नया बनने के लिए आपके पास आए And परमेश्वर। just the Lord my God, for whatever work the Holy Ghost is doing in our lives and is going to do, Lord, we bow, Lord, like always. All glory, all power, all praise and all honor belongs to you, and you know for every single thing, O Lord, that your Holy Spirit is doing in our lives and through this ministry, Lord my God. It is our promise and we will keep it. No man shall have your glory and no flesh shall glory in your presence, O Lord my और God. हाँ प्यार प्रभु मेरे परमेश्वर, जो कोई भी कार्य आपका पवित्र आत्मा हमारे जिंदगियों में कर रहा है परमेश्वर, और जो करने वाला है परमेश्वर, उसके लिए सारी महिमा, सारा आदर, सारा सामर्थ सिर्फ आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस सेवकाई के द्वारा करेगा परमेश्वर, उसके लिए सारा आदर सिर्फ आप ही को जाएगा प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर। Holy Spirit of God, और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, not I, but you speak, not Pastor Sunu, but you translate. और मैं नहीं तो तू बोल, और पास्टर सुन नहीं तो तू अनुवाद कर। And thank you for changing our word from Logos into Rhema, Lord. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज के वचन को आपने लोगोस से रेमा में परिवर्तित किया है। Lead us is my prayer unto thee. हमारी अगुवाई करो, यही दुआ हम आपसे करते हैं We come परमेश्वर। to learn, आज हम सीखने के लिए आए to हैं, become, to learn from you. आपसे सीखने के लिए आपके पास आए हैं। Teach us. हमें सिखाओ। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So we are into this journey of this awesome stone, that how he was dislodged from the big mountain, how he became a boulder, how he was thrown down from the cliff, and how he was, scattered into many pieces, all the unwanted pieces dislodged him and went away, and how he was rolling and rolling and rolling, and now he has come to the place where God has begun to work on him now. और हम उस पत्थर के उस सफर में हैं जहां पर हम देखते हैं कि वो जो पत्थर जो है वो उस पर्वत से अलग होता है, और अलग होकर ऊंचाई से नीचे गिरता है, और नीचे गिरकर टूटकर बिखर जाता है, और जो सारी चीजें जरूरत नहीं है वो सारी चीजें जो है वो अलग हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि कैसे वो पत्थर जो है वो उस जगह पर आया है जहां पर परमेश्वर उसके ऊपर कार्य कर रहा है। Amen. Amen. Now we are into that portion of last Sunday. We saw how many were blessed last Sunday? Come on. चलो पिछले इतवार को कितने लोग आशीषित हुए हैं। चलो We saw locked and learning. हमने देखा कि अटका कर सिखाया जाना। For those who have come for the first time on our page, on our channel, please go to the previous teachings of this entire service of this sermon, and I believe you'll be blessed. और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे आपसे विनती है कि आप कृपया करके हमारे इस पेज पर जो इस श्रृंखला के जो पहले संदेश है वो सभी संदेश आप सुन ले, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है आप उससे आशीषित जरूर होंगे। Amen. Amen. And this entire message is talking about that how when a person is chosen or called of God, what exactly happens and how should that person react to what is happening. और ये जो संदेश है वो उसके बारे में बताता है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है और उसके जिंदगी में जो कुछ भी होता है उस वक्त उसके साथ हो रहा है उसके प्रति वो क्या प्रतिक्रिया देता है, इसके बारे में बात करता है। So let us go in today's message because I won't be taking revision. तो चलो आज के संदेश में हम तुरंत चले जाए। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में वापस नहीं बोलने वाला। I will give my subtopic later on. देखो आज का जो उपविषय मैं आपको बाद में दूंगा। Let me read my main verse. आज का जो मुख्य वचन है वो मुझे पढ़ने दो। Psalm 25 and verse 9. भजन संहिता 25 और वचन 9। The meek will he guide in judgment. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाएगा। Amen. Oh, come on. Are you ready for that today? ओ चलो, क्या आप इसके लिए तैयार हो आज? Amen. Let's go in today's word. चलो आइए आज के वचन में हम चले जाएं। When the stone now has come to the place where he's locked and he's learning from God. और अब जब ये पत्थर उस जगह पर आकर रुक गया है जहाँ पर वो अटक गया और यहाँ पर परमेश्वर उसे सिखा रहा है। The next phase that God enters with the stone is called as, I'll tell that later on. और इस पत्थर के साथ जो अगले पड़ाव में परमेश्वर उसे
से ले जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। Now this place is very precious in the sight of the stone and God. और ये जो जगह है ये परमेश्वर के नजरों में और उस पत्थर के लिए बहुत ही मूल्यवान है। If you want God to use you, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, if you want God to take you into the very plan and purposes of His for you in your life, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना में परमेश्वर आपको ले जाए, आपको people of God, तो परमेश्वर के लोगों, remember this one thing. ये एक चीज ध्यान रखो, You have to understand that He's going to do one thing, one precious and very important work over your life, which is it's very important in your next phase of ministry or usage by God. और यहाँ पर परमेश्वर जो है आपके जिंदगी में कुछ तो बहुत ही मूल्यवान करने वाला है, जो आपको आपके अगले पड़ाव में या आपके सेवकाई में आगे जो है आपको उसका इस्तेमाल होने वाला है। And this phase is where God now, this is the place where now the stone is locked in. और ये वो भाग है जहाँ पर वो पत्थर जो है अभी आकर अटक गया है। It is not in the midst of the river. अब वो नदी के बीच में नहीं है, but he's at the side which is called the brook. लेकिन वो किनारे पर है, जिसे it's called the brook, जिसे झरना कहते हैं। Yeah, which has got very low flow of the stream. यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो बहुत ही कोमल है। Now listen. आप सुनो, great work is not done in the force of the river. देखो, महान कार्य जो है वो नदी के महान भाव में नहीं होता। Yeah, always great work, or I can say not even chiseling work. और हमेशा मैं तो कहता हूँ कि छन्नी मारकर तैयार करने का जो काम है वो भी नहीं, but something much more precious than that chiseling, लेकिन ये छन्नी मारकर तैयार करने से भी कई ज्यादा मूल्यवान is one more work, और एक काम है which happens at this brook place, जो इस झरने के पास होता है। Now this place is very important. अब ये जगह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण In है। the entire journey of this boulder, इस पत्थर के पूरे सफर में this place has got a lot of meaning, lot of worth, and lot of I can say price. और इस भाग को बहुत ही अर्थ है और बहुत ही मूल्यवान है, और मैं तो कह सकता हूँ कि ये बहुमूल्य है। Yeah, why? क्यों? Because here, what happens here doesn't happen anywhere else in the flow of the river. क्योंकि जो यहाँ पर होता है वो नदी के बहाव में कहीं पर भी नहीं होता। Why? क्यों? Because God does one very precious work here which he doesn't do anywhere in the river. क्योंकि परमेश्वर इस जगह में एक बहुत ही मूल्यवान काम करता है जो वो नदी में और कहीं नहीं करता। Let me read for me to make you understand this concept very clearly. Let me read Proverbs 22 and verse 6, everybody, for you. और इसे आपको समझाने के लिए मैं आपको नीति वचन इसका 22वां अध्याय वचन 6 पढ़कर सुनाता हूँ। If you remember this, Jesus said something very important. अगर आपको ये याद आ रहा है, यीशु ने एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। If you want to enter in the kingdom of heaven, अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, become a child, he said. वो कहता है कि बच्चा बन जाओ। Now the Bible says Proverbs 22 and verse 6, everybody. और बाइबल कहता है नीति वचन इसका 22वां अध्याय वचन 6, Train up a child बच्चों को शिक्षा दो in the way he should go. उसी मार्ग में दो कि जिसमें उसे चलना चाहिए। Amen. Now I will go deep into this point. अब इस मुद्दे की गहराई में जाता हूँ। You see, training is not done in one day. देखो, प्रशिक्षण जो है या ट्रेनिंग जो है वो एक दिन में खत्म नहीं होता। Also, it is not done by being there and going, coming, going. No. और आते जाते ऐसे भी ट्रेनिंग नहीं होता है। Training is done by being with the child. और ट्रेनिंग जो होता है वो बच्चे के साथ रहकर होता है। Yeah, whenever you have to train somebody, जब कभी भी आपको किसी और को प्रशिक्षण या ट्रेन करना होता है, it may be a child, वो शायद बच्चा होगा, it may be a batsman, शायद वो एक बैट्समैन होगा, it may be I can say a footballer, वो शायद एक फुटबॉलर होगा, it may be a billiards game, या फिर बिलियर्ड्स गेम का कोई खिलाड़ी होगा, it may be a dog, शायद एक कुत्ता होगा, it may be any animal, शायद कोई
जानवर होगा, it may be a child, चाहे एक बच्चा it होगा, may be an athlete, या फिर एक जो दौड़ने वाला है वो होगा, it may be I can say a gymnast, या फिर एक जिम्नास्ट होगा, it may be anybody. वो कोई भी होगा। Whenever you train someone, जब कभी भी आप किसी को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देते हो, you have to be with that person. आपको उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता It है। is highly imperative that you be with that person. ये बहुत ही जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के साथ रहे। Especially when a father or mother trains a child, you have to be with the child. विशेषकर जब एक माता या पिता जो बच्चे को प्रशिक्षण देता है, उस वक्त आपको बच्चे के साथ रहना जरूरी है। You just cannot say, okay, I'm going home now, and you do what I've told you to do, and tomorrow morning I'm going to come back and I'm going to see what you've done. अब बस आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कल सुबह फिर लौटूंगा और मैं आके देखने वाला हूं कि आपने क्या किया है। बस आप ऐसे नहीं कर सकते। करने के लिए तूने किया है कि नहीं, मैं कल सुबह आके देखूंगा। No, that's not called training. देखो, इसे ट्रेनिंग नहीं कहते। ट्रेनिंग का मतलब है, as long as the child is learning, or as long as the athlete is learning, as long as the gymnast is learning, the cricketer is learning, the footballer is learning, you have to be with that person. ट्रेनिंग का मतलब या प्रशिक्षण का मतलब यह है कि जब तक वो बच्चा सीख रहा है, जब तक वो क्रिकेटर सीख रहा है, जब तक वो फुटबॉलर सीख रहा है, जब तक वो जिम्नास्ट सीख रहा है, तब तक आपको उसी के साथ रहना है। Now, when you start training someone, और अब आप जब किसी को प्रशिक्षण देते हो, you give a particular, I can say a task, or you give a particular skill. और जब ट्रेनिंग देते हो तब उस वक्त आप उस व्यक्ति को कोई कार्य देते हो या कोई गुण या कौशल बताते हो, or you show a technique. I can say more than skill, I can say technique. और स्किल से ज्यादा मैं या गुण से ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि आप उसे एक नई तकनीक दिखाते हो, And then you stand there और फिर आप वहीं पर खड़े रहते हो and ask that person to master that technique. और फिर आप उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस तकनीक को आप इसमें आप बहुत ही माहिर हो जाओ। Amen. Now, this is something very important. और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because why? क्यों? It requires patience on both ends. क्योंकि इसमें दोनों भी तरफ जो है वो धीरज की बहुत ही जरूरत है। Yeah, patience on the learner and patience on the teacher. जो सीख रहा है उस पर धीरज धरे रहना, और जो सिखा रहा है उस पर भी धीरज धरे रहना, ये बहुत नहीं, जो सीख रहा है वो धीरज बांधे रखे, और जो सिखा रहा है वो भी धीरज बांधे रखे। दोनों तरफ धीरज की बहुत जरूरत होती है। Similarly in marriage also. और वैसे शादी में भी ऐसा ही है। Same thing. If you don't have patience, don't get married. देखो, अगर आपके पास धीरज नहीं है तो शादी मत करो। If you want to really master one of the gifts of the Holy Spirit, अगर आपको पवित्र आत्मा का किसी भी भेंट में आपको then one of the gift, that is patience. आपको पवित्र आत्मा के एक भेंट में अगर आपको माहिर होना है, Sorry, not फल, gift, fruit. अगर पवित्र आत्मा के फल में आपको एक फल में आपको माहिर होना है और वो धीरज है, Get married. तो शादी करो। Anyways, that's a different topic altogether. देखो, वो एक अलग ही विषय है, But लेकिन it's not easy. Come on. देखो आसान नहीं है। चलो, Train somebody. कि किसी को प्रशिक्षण देना, When you know that person is doing mistake after mistake after mistake after mistake after mistake after mistake, and still you be there and stand there and tell the person, no, not this way, this way. जब आप ये जानते हो कि वो व्यक्ति जो है गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती करते ही रहता है, और फिर भी आपको वहीं पर खड़े रहना है और आपको उसको बताना है कि ऐसे नहीं वैसे करना है। You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के लोगों, it is not easy. देखो ये आसान नहीं है। You have to be there, you have to teach, you have to stand, you have to observe, you have to again teach, again you have to stand, again you have to keep on doing that. देखो, आपको वहीं पर खड़े रहना है, आपको सिखाना है, आपको देखना है, आपको फिर सिखाना है, और आपको फिर से देखना है, और आपको वहीं पर खड़े रहना है। Till a grown-up does not become a child, he cannot learn. जब तक जो बड़ा हुआ है वो बच्चा नहीं होता, तब तक वो सीख नहीं सकते। It becomes impossible for any trainer, even God, to teach a person who's grown up. देखो, जो सिखाने वाला है, जब तक कोई जो व्यक्ति है वो बड़ा है और वो छोटा नहीं होता, तब तक उस व्यक्ति के लिए और परमेश्वर के लिए भी किसी को सिखाना बहुत ही मुश्किल है। It becomes very difficult, it becomes impossible, because the person doesn't want to learn. वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है वो सीखना ही नहीं चाहता। Yeah, now, but here the entire situation of the stone is changed. लेकिन यहाँ पर इस पत्थर की जो परिस्थिति वो पूरी तरह से बदल गई है। It has become all that prejudice, all that glory, all that glamour,
glamour, all that glitter, all the unwanted stuff has been cracked up by God, and God has brought him at the side of the river, at the brook, and now God becomes training on him. और यहाँ पर जो है उसके इस पत्थर के जो सारे शान और शौकत और सब कुछ मशहूरी और जो महिमा और गौरव था वो सब कुछ चला गया है, और जो भी फालतू की चीजें हैं, और जो भी फालतू की चीज उसके जिंदगी में है वो सब कुछ परमेश्वर ने निकाला है और उसे अब बाजू में झरने के पास ले आया है. You know, it is highly imperative that you understand, till you don't get rid of all that clutter here, God is not going to allow you to come to that section which his topic today is. और देखो, जब तक सारा कचरा जो यहाँ पर भरा हुआ है आप उसे निकाल नहीं देते तब तक नहीं, वो निकलता, आप निकालो या परमेश्वर निकालेगा, जब तक वो पूरा कचरा निकलता नहीं तब तक आप इस भाग पर नहीं आएंगे जो आज का उपविषय है. And the subtopic is, और उपविषय ये है the smoothing zone. और चिकने किए जाने की जगह. Yeah, I can say smoothened. मैं कह सकता हूँ चिकना किया गया. Yeah, you know, the smoothing zone. देखो, जहाँ पर चिकना किया जाता You know, है. I remember some time back when I was working in my father's workshop. देखो, मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले जब मैं मेरे पिताजी के वर्कशॉप में काम कर रहा था, There used to be a grinding machine, वहां पर एक ग्राइंडिंग मशीन होता था. which is to you know chisel off many things. First it used to be a lathe machine, then a grinder, you know, which is to chisel off all the rough edges of a particular object, of an iron object. और किसी भी लोखंड के एक वस्तु को पहले वो लेथ मशीन में डाला जाता था, उसके बाद ग्राइंडर में डाला जाता था, और ये जो मशीन का कार्य है उसके जो आड़े टेढ़े जो कोने हैं वो पूरी तरह से वो निकाल देता था, घिस देता था. But then लेकिन उसके बाद there was one more process, उसका और एक कार्य होता था और एक प्रक्रिया थी, which I couldn't understand at the one instant. और वो प्रक्रिया को मैं एक ही झटके में नहीं समझ पाया. Because why? क्यों? I never understood why they were doing all these phases with that particular object. क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उस चीज के साथ इतने सारे अलग अलग भाग में वो क्या कर रहे थे. If you know this very well, there is something called as sandpaper. अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको पता है सैंड पेपर के बारे में, There is something called as 10 number, 9 number, 8 number, 7 number. और उसमें अलग अलग नंबर होते हैं, 10 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, And then is also 0 number, I suppose. So. 1 number, I think. और एक नंबर है. And this 1 number, it looks like, what is this going to do? और ये एक नंबर का जो सैंड पेपर है, हम उसे देखकर ये क्या करने वाला है? What is it going to do? It's got nothing in it. इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये क्या करेगा? But then still the craftsman takes the sandpaper. लेकिन फिर भी जो बनाने वाला है वो फिर भी कारीगर है. जो कारीगर है वो फिर भी वो सैंड पेपर लेता है And starts rubbing upon that object. और वो उस चीज के ऊपर वो पेपर को लेके घिसना शुरू करता है. And then he removes it off और फिर उसे निकालता है and sees. और फिर देखता है, Blows, फूंकता है again starts rubbing. और फिर से घिसना शुरू करता Then है moves his hand upon that object. और फिर उस चीज पर अपने हाथों को घुमाता है. And again, if he doesn't find it according to what he is expecting from that object, और उस चीज से जो अपेक्षा वो रख रहा है अगर उस हिसाब से नहीं है तो again he takes the sandpaper फिर से वो सैंड पेपर लेता है and rubs it. और फिर से घिसना शुरू This करता है. process goes on for a very long time. और ये जो प्रक्रिया है बहुत समय तक चलते रहता है. The whole journey of that iron object, आपको पता है उस लोखंड के वस्तु के पूरा जो सफर है, this from the big size to the miniature to the minuscule, the size which they need it to be. बड़े आकार से जो सबसे छोटे आकार में जैसे वो चाहते कि वो बने तब तक The lengthiest process, जो सबसे लंबा का प्रक्रिया है वो ये है, is the sandpaper of the smoothing process. और वो चिकने किए जाने का जहां पर सैंड पेपर का इस्तेमाल होता है, ये प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वक्त And लगता it है takes a very long time. और इसमें बहुत वक्त लग जाता है. They keep on rubbing that thing वो उस चीज को घिसते ही रहते from हैं all sides. सारे भागों से. And I used to wonder, और मैं हमेशा सोचता था what are they doing with this thing? वो इस चीज के साथ क्या कर रहे हैं. Come on, you're wasting your time. Is enough now. चलो आप आपका वक्त जो है वो जाया गवा रहे हो, जो हो गया बस है. Give it to me. वो मुझे दे दो. No. नहीं, We are still working on it. हम अभी भी उस पर काम कर रहे It's हैं. exactly the same thing God does in the smoothing zone. और
यही चीज परमेश्वर इस चिकने किए जाने के जगह में परमेश्वर करता है। Do you know why today the body of Christ is not united? आपको पता है कि आज परमेश्वर का शरीर जो है वो इकट्ठा क्यों है, एक क्यों नहीं है? Because क्योंकि एकता क्यों नहीं हम उनमें एकता क्यों नहीं है? Because we are all those kind of stones who have come not smoothened to be used of God. क्योंकि हम सब ऐसे पत्थर हैं जो चिकने किए जाकर नहीं आए हैं, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते Yeah, we want God to use us, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल but we करे, have jumped the process of smoothing. लेकिन चिकने किए जाने का जो प्रक्रिया है वहां से हम कूदी लगाकर आगे गए। Yeah, we have jumped that process. हम उस प्रक्रिया को ही हम लांघ कर गए हैं। So when we are put in David's scribe, when we are put in David's bag together, तो जब हमें दाऊद के बैग में इकट्ठा डाला जाता है, we start fighting there. यहाँ पर हम झगड़ा शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ। Singing is my forte. अच्छा, गाना जो है वो मैं ही कर पाऊंगा, मैं करूंगा, I will play the keyboard. मैं ही कीबोर्ड बजाऊंगा। No, I will play. I will play. मैं बजाऊंगा, मैं You did not give me the stage. आपने मुझे मंच नहीं दिया, Why you did not give me the stage? आपने मुझे मंच क्यों नहीं दिया? No, how can you only sing? You only play. I will sing. You play. कैसे क्या आप ही गा सकते हो, आप ही बजा सकते हो और आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप ही कैसे क्या, मैं नहीं? No, I will sing and I will play. Why are you interfering between me? मैं गाऊंगा, मैं बजाऊंगा, आप क्यों बीच में आ रहे हो मेरे? You go aside. आप बाजू में हटो। अरे you go aside. अरे आप बाजू में हटो। Why didn't you give me the stage? आपने मुझे मंच क्यों नहीं दिया? Why you made me stand behind? आपने मुझे पीछे क्यों खड़ा किया? Why you made me stand down? आपने मुझे नीचे क्यों खड़ा किया? यही हो रहा है बैग में. And Goliath is laughing at us. और गलियात हमारे पास देखकर हंस रहा है। ऐसा ही होता है. होने दो. Come on, people of God. चलो परमेश्वर के लोगों, Why do we want to be used in such a hurry when we know we are going to miss the target? चलो हमें इतनी गड़बड़ी में खुद का इस्तेमाल क्यों किया जाना है जब हम ये जानते हैं जो मंजिल है उसके हम पार नहीं, जो निशाना है हम उसको चूकेंगे, 100% चूकेंगे. Come on, चलो we love our ministry more than the mission of God. देखो हम हमारी सेवकाई से ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर हाँ, yes. परमेश्वर के मंजिल से ज्यादा या परमेश्वर जो करवाना चाहता है उससे कई ज्यादा हम हमारी सेवकाई से प्यार करते हैं. We love being slung out of the sling more than killing Goliath. देखो हमें उस गोफन से निकलना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि गलियात को मारना. That's why we skip or jump the smoothing process. इसीलिए हम जो चिकने किए जाने के प्रक्रिया से हम लांघ कर हम चले जाते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, come on, look at the Lord Jesus himself. चलो यीशु मसीह के पास खुद हम उसके पास ही देखते हैं. How many years did he get trained by his Father, by the Holy Spirit before being launched out into ministry? चलो परमेश्वर पिता के ओर से और पवित्र आत्मा के ओर से वो कितने साल तक वो प्रशिक्षण लेता रहा सेवकाई में उतरने से पहले. How many years? See that? कितने साल उसने लिए वो देखो. Do we sit at his presence? क्या हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं? Now here, let me tell you, if you really want God to use you in a great way, चलो यहाँ पर मुझे आपको बताने दो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको एक महान तरीके से आपका इस्तेमाल करे. see this for people who are mahan, okay? देखो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही ग्रेट है, For people who really want to be used of God in a great way. जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको महान तरीके से इस्तेमाल करे. Not for people who feel great. देखो वो उन लोगों के लिए नहीं जो खुद को महान समझते हैं. This message is not for you. देखो ये संदेश आपके लिए बिल्कुल नहीं है. If you are mahan, please log out. अगर आप महान हो तो कृपया कर आप लॉग आउट हो जाइए. But if you want God to use you in a great way, लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको महान तरीके से इस्तेमाल करे, this is the message for you. तो ये मैसेज आप ही के लिए है. Listen, सो very important now. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Here is the process where God starts smoothing you. और यहाँ पर वो प्रक्रिया शुरू होता है जहाँ पर परमेश्वर आपको चिकना बनाता है. He will train you at every section, every moment, every point. He will start training you. और हर मुद्दे पर, हर कड़ी पर और हर भाग में परमेश्वर आपको प्रशिक्षण देगा. He will tell you this is not how it should be done. This is how it should be done. वो आपको बताएगा कि इसे ऐसे
नहीं करना है, लेकिन इसे ऐसे करना है। This is not how you pray, this is how you pray. देखो, आपको ऐसे दुआ नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से दुआ करना This is है। not how you read the word, this is how you read the word. वचन को ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन वचन को ऐसे पढ़ते हैं। This is not how you study, this is the way you study. देखो, इस तरीके से अभ्यास नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना है। He will sit with you and he will teach you. वो आपके साथ बैठेगा और आपको सिखाएगा। Now, the Bible says in Psalm 25 and verse 9, बाइबल कहता है भजन संहिता 25 और वचन 9 में, the meek will he guide in judgment. वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। न्याय में अगुवाई करेगा। न्याय में अगुवाई करेगा। वो नम्र लोगों को न्याय में अगुवाई करेगा। And the meek will he teach his way. हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाएगा। Genesis 3:12 declares when the moment God showed Adam his fault, देखो, उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 12 में जैसे ही परमेश्वर ने आदम को उसकी गलती दिखाई, he said, the woman that you gave me, वो तुरंत कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग दिया था। I am not to be blamed. You, God, you are to be blamed because you gave her to me. I didn't ask her. I didn't bring her out of me. देखो, मुझे दोष मत दो, लेकिन खुद को दोष लगाओ परमेश्वर, क्योंकि मैंने उसे नहीं मांगा था, लेकिन आपने उसे मुझ तक ले आए और आपने उसे मुझसे निकाला। मैंने नहीं कहा था निकालने के लिए। मैंने थोड़ी उसको मेरे अंदर से निकाला है। मैंने थोड़ी उसका ऐसा फॉल्टी पीस मुझे लिया है। It is you who gave me this faulty piece. आपने ये फॉल्टी पीस मुझे दिया है। That's what he means to say. और यहाँ वही तो कहना चाहता The है। woman which thou gavest to be with me. जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था। That shows one thing, and that is. और यहाँ पर एक चीज दर्शाता है, ये देखने को मिलता है। That is pride. कि गर्व। गर्व. People of God. परमेश्वर के लोग। I call this the humbling zone. मैं इस भाग को नम्र किए जाना ये भाग करके कहलाता हूँ। Whenever you come to the brook zone, brook side, जब कभी भी आप झरने के किनारे पर, झरने के पास आते हो, here starts the humbling process. यहाँ पर नम्र किया जाना जो है, ये काम जो है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। And this is not an easy thing. और ये जो है, ये आसान नहीं The है। Bible says, and the meek he will teach his way. और बाइबल कहता है वो नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा। फिर से एक बार जोर से। सिखाएगा। फिर से एक बार। सिखाएगा। फिर से एक बार। सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो। आमीन। सीखना is not easy. देखो, सीखना जो है ये आसान नहीं है। To learn is not easy. सीखना आसान नहीं है। He will teach you. वो आपको सिखाएगा। If you are humble. अगर आप नम्र हो तो। If you are not humble, अगर आप नम्र नहीं हो, he's not going to teach you. तो आपको बिल्कुल नहीं सिखाएगा। Then you are going to be of no use. तो फिर आप किसी भी काम के नहीं हो। You are just going to be there. आप बस वहां पर रहोगे and used of Satan. और शैतान आपका इस्तेमाल करेगा। But if you are not going to, if you be humble, लेकिन अगर आप नम्र हो जाओगे, then he is going to teach you his way. तो फिर वो आपको उसके मार्ग को सिखाएगा। This is called as smoothing. इसे कहते हैं चिकना किया जाना। Before the stone was slung at Goliath. देखो, उस पत्थर को गलियात की तरफ मारने से पहले he had to stay with 4 other stones in the bag. उस बैग में उस पत्थर को और दूसरे 4 पत्थरों के साथ रहना था। Can you accept another stone with you in God, in Christ, देखो, with all their faults? देखो, परमेश्वर में, मसीह में किसी और पत्थर का क्या आप स्वीकार करोगे उनके गलतियों के साथ? Can you live with a imperfect believer? क्या आप एक अपरिपूर्ण मसीह के साथ आप जी सकते हो? Can you live with someone who is not yet done? क्या आप किसी के साथ रह सकते हो जो अब तक बना नहीं? Point at me. जो अब तक बना नहीं, Perfect. जो परिपूर्ण नहीं है। See, why were there 5 stones? देखो, वहां पर 5 पत्थर क्यों थे? Because that's the number of grace. क्योंकि वो कृपा ये दर्शाता है। I should understand. See, I'm a stone, he's a stone, another 3 more stones. देखो, मुझे समझना जरूरी है कि मैं एक पत्थर हूँ, ये एक पत्थर है और वहां आसपास और भी पत्थर है और 3 पत्थर है। In the church, in the body of Christ. और कलीसिया में, परमेश्वर के शरीर में। This represents the David's bag. और ये जो है दाऊद का जो बैग
बैग है ये दर्शाता है। Now we all five are together, अब हम पांचों इकट्ठा है and we are journeying to a mission. और हम एक मिशन पर जा रहे हैं, And on this way, और इस मार्ग पर we cling one another. We bang against one another. Talk. हम एक दूसरे पर हम जाकर टकराते हैं, ठोक 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 ठोक। Can we accept that banging? क्या इस टकराव को हम स्वीकार कर सकते हैं? Can I stay with another believer in Jesus Christ? क्या मैं यीशु मसीह में किसी और मसीह के साथ जी सकता हूँ, रह सकता हूँ? When David picked up these 5 stones, जब दाऊद ने ये 5 पत्थर उठाए, he did not ask the stone, who is willing to come with me? उसने उन पत्थरों से नहीं पूछा कि कौन मेरे साथ आना चाहता है, Who can stay together? कौन साथ में रह सकते हैं, Who can sacrifice someone else, your ministry for someone else's ministry? कौन खुद की सेवकाई का त्याग कर सकता है किसी और के सेवकाई के लिए? No, नहीं, they were not asked any questions. उन्हें कोई सवाल नहीं किया गया In था, fact, was not given any choice, any chance to give their choice. बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें कोई चुनाव ही नहीं दिया था, उन्हें कोई सवाल भी नहीं पूछा गया था। They were just picked up according to His choice, according to the choice of the Lord Jesus Christ. You'll be picked up and put together on the way to His mission. लेकिन उसके चुनाव के हिसाब से, यीशु मसीह के चुनाव के हिसाब से यीशु ने उन्हें चुना और उसके मिशन पर वो ले गए। यीशु आपको चुनेगा और आपके उसके मिशन को एक साथ आपको लेके जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं है कि वो हर एक का इस्तेमाल करेगा। वो आप में किसी का भी एक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसका निशाना चूकने वाला नहीं है। आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया। One shot, game over. Hallelujah. एक ही शॉट और सब कुछ खत्म। The हालेलुया। rest 4 should get happy. Yes, come on. और बाकी के 4 जो है वो खुश होने चाहिए, ये चलो। Not say inside. और लेकिन अंदर ऐसा नहीं कहना चाहिए, अरे मेरे को कहीं का इस्तेमाल नहीं किया है रे, मेरे मैं होता ना वो, अरे ये तो जाके लगा, मैं तो बीच में ही लगता। अरे क्या बीच में लगता, वो लगने से पहले वो मर जाता, मैं ऐसा है। अरे तू क्या है, मेरे बाजू में और एक पत्थर बोलता है, अरे मेरे को लेने से पहले ही वो मरता। अरे वो छोड़, मेरे को छूने से पहले वो मर जाता। अरे छोड़ रे, तेरे को क्या पावर है, मेरे पावर देख कैसा अरे है। क्या पावर है मेरे मैं तो पास, खड़ा होता बोलता टच सब गिर जाते। तू बोलता है, मेरे को बोलने के जैसे हाथ करता सब गिर जाते हैं। अरे मैं तो आते ही ऐसा कि सब लोग गिरते। आते मेरा सिर्फ नाम ले तो सब गिर जाते हैं। अरे क्या अभी क्या बोलूं अगला पॉइंट इसको, मैं तो घर से उठने के पहले सब गिर जाते। मैं तो खटके पे लेटते ही सब गिर जाते हैं। आर्ग्यूमेंट इन द बैग ऑफ डेविड, और दाऊद के बैग में यहाँ पर झगड़ा जारी है। मेरे को कोई इस्तेमाल नहीं किया दाऊद ने। डेविड वेरी बैड डेविड, दाऊद बहुत बुरा किया। Why didn't you use me, man? तूने मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Yeah, why did I spend all that journey from top to down and the broken? What is this thing over here? शायद मैंने वो पूरा सफर पूरा क्यों किया? उस पर्वत से ऊपर से लेकर नीचे तक झरने के पास तक मैंने ये सफर पूरा क्यों किया यार? I'm not going to talk to God. मैं परमेश्वर से बातें नहीं करूंगा। ये काय को आता है बीच में? बीच में झगड़ा in the bag. और उस बैग में there is a fight. That's why Goliath is winning. और इसी वजह से गलियात जीत रहा है। People of God, परमेश्वर के लोग, listen everybody. समझो, सुनो, Understand this. ये समझ लो। This is the place where the meek will be taught His way. If you are humble, He will teach you. देखो, ये वो जगह है जहाँ पर जो नम्र है उसे उसका मार्ग सिखाया जाएगा। अगर आप नम्र हो तो आपको सिखाया जाएगा। You cannot afford to be proud and God using you. It's not going to work. देखो, गर्व होकर परमेश्वर आपका गर्विष्ठ होकर कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, ऐसे होने ही नहीं वाला है। You have something wrong in your head. Why I was not given the keyboard? Why I was not given the pulpit? Why I was not made the leader? Why I was not made the pastor? Why I was not made whatever? तो फिर मुझे ऐसा कहना है कि आपके यहाँ पर दिमाग में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गलत है, और आप कह रहे हैं कि मुझे कीबोर्ड बजाने क्यों नहीं दिया, मुझे पास्टर क्यों नहीं बनाया, मुझे वो मंच पर खड़ा क्यों नहीं किया। नहीं, ये नहीं चलेगा। Let me tell you one thing. मुझे आपको कुछ बताना है। If you are meek, अगर आप नम्र हो, He is going to teach you. तो वो आपको सिखाएगा।
Say it after me, everybody. सिखाएगा. चलो सभी जन मेरे पीछे दोहराओ. सिखाएगा. 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 सिखाएगा is sit and learn. टीचिंग इज बैठकर सीखना. Yeah. Sit and learn. बैठकर सीखना. Open your ears. What he's saying. आपके कानों को खोलकर सुनना है कि वो क्या कह रहा है. Receiving from him his direction, his teachings. और उसकी ओर से जो दिशा है वो आपको स्वीकारना है और वो जो सिखा रहा है वो भी आपको स्वीकारना है. Now let me tell you what a humble person is like. देखो और मुझे आपको बताने दो कि एक नम्र व्यक्ति कैसे होता है. Now you need to understand how a humble person is. You are humble, maybe your neighbor is not. देखो आपको ये समझना जरूरी है कि एक नम्र व्यक्ति कैसे होता है. आप नम्र होगे लेकिन आपका शायद बाजू वाला नम्र नहीं. So you should know whether he is humble or तो not. आपको ये समझना जरूरी है कि आपका बाजू वाला या नम्र है या नहीं. I'm going to give you some points how to recognize whether your neighbor is humble or not. Or you are humble. You are very humble. और मैं आपको कुछ मुद्दे देने वाला हूँ ये समझने के लिए आपका बाजू वाला नम्र है यानी आप नम्र हो. बहुत ही आप तो नम्र ही हो. You are in Goliath's head only direct. You are the done it say. तुमसे काम. आप तो गलियात के सिर में ही हो. आपका तो काम तो हो चुका है. You are perfect. आप तो परिपूर्ण हो. You are sitting next to God. आप तो परमेश्वर के बाजू में ही बैठे You हो. are hallelujah and praise the Lord. आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड हो. Your neighbor is humble or not. I'm giving you points to recognize. मैं ये मुद्दे दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि आपका बाजू वाला जो है वो नम्र है या नहीं. Yeah, you should know how much humble he is. आपको ये समझना जरूर है कि वो कितना नम्र है. Let's go. Point number 1. चलो आइए हम बढ़ते हैं. मुद्दा क्रमांक 1. A humble man acknowledges her mistakes. एक नम्र इंसान अपनी गलतियों का स्वीकार करता है. Oh, your neighbor is not accepting. आपका बाजू वाला जो है वो स्वीकारता नहीं है. That means he is not humble. He is humble. इसका मतलब वो नम्र नहीं है वो बम्र है. Yeah. You are humble. आप नम्र हो. Yeah. Now, so whenever you are told you're wrong here, जब कभी भी आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पर गलत it हो. may be anything. देखो वो कुछ भी हो सकता है. If you get angry, अगर आपको गुस्सा आता है, if you get obnoxious, अगर आप I don't know what you say in Hindi for that. बहुत ही गुस्से वाले, Hurtfully angry. अगर आपको बुरा लगकर आपको गुस्सा आता है, Something is wrong. Need to check up. Not you, your neighbor's thermometer of humility. तो फिर कुछ तो गलत है. आप में नहीं लेकिन आपके बाजू वाले के नम्रता में. Yeah. नहीं बाजू वाले के नम्रता के तापमान में तो नुगड गर्वाचा पारा वाढलाय. बघा 300 टेम्परेचर आहे गर्वाचं. ते 30 आहे. तुला चष्मा आहे मला नाही आहे. मला क्लिअर दिसते 300 आहे. ते 30.0 आहे. That नीट बघा. ते 30.0 आहे. अरे 300च्या वर गेल्या रेड लाईन क्रॉस करून फुटत राहिलं थर्मोमीटर. फुटला बघ. हो ते तुमच्या हाताची गरमी आहे. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2. A humble man trusts in the Lord. एक नम्र इंसान जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करता है. God will handle it. Relax. Your neighbor doesn't do that. I know. परमेश्वर देख लेगा. मैं जानता हूँ. आपका बाजू वाला वैसा नहीं करता. मैं जानता हूँ. Yeah, he doesn't trust in God. वो तो परमेश्वर पर भरोसा रखता ही नहीं है. You trust in God. आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो. Don't worry. God will teach. God will show that person. Relax. देखो चिंता मत करो. परमेश्वर उस व्यक्ति को दिखाएगा. आप रिलैक्स करो. परमेश्वर उस व्यक्ति को सिखाएगा. तू रिलैक्स कर यार. ये आपका बाजू वाला ऐसा नहीं बोलता है. वो बोलता है मैं सिखाएगा, मैं बोलेगा, मैं दिखाएगा, मैं सब कुछ करेगा, मैं. English. But your neighbor, he says, I will teach. I will do everything. I will do everything. I will teach. You are humble. आप नम्र हो. आप तो परिपूर्ण हो. Hallelujah एकदम. आप तो हालेलुया एकदम. Yeah, so a humble man trusts in the Lord, knowing that God is there, God will handle, God will take over. I just have to give it in God's hands. और एक नम्र इंसान जो है वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है. वो जानता है कि परमेश्वर देख लेगा. परमेश्वर उसे पूरी तरह से वो अंत तक ले जाएगा. मुझे देखने की जरूरत नहीं. वो परमेश्वर है. That doesn't mean you don't do anything. You should do your part. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन आपको आपका भाग जो है वो पूरा करना है. Look
Look at, I'll give an example. Here Peter is in the ship and he's toiled the whole night and he has drawn nothing from the sea. देखो इस भाग के पास हम देखें जहां पर पतरस जो है वो पूरी रात भर उसने मेहनत की है और रात भर उसने समुद्र में कुछ भी नहीं पकड़ा है और यहाँ पर आकर अभी उसके जाले जो है वो धो रहा है. And Jesus comes and tells him that let us go and launch into the deep. और यीशु आकर उसे कहता है कि ये नाव को समुद्र के बीच में ले जाओ. And here he says to the Lord, और यहाँ पर वो परमेश्वर से कहता है. and so Jesus says to him that put cast your net into the sea. और यीशु से कहता है कि तेरे जो जाले है वो नदी में वो समुद्र में डाल. This moment Peter just tells the Lord, और इस क्षण में पतरस परमेश्वर से कहता है only once, बस एक ही बार, that Master, we have toiled all night and caught nothing. कि मालिक हमने रात भर मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा है. Yet at thy word. लेकिन आपके शब्द पर. Now he had never known the Lord till that time. देखो वो परमेश्वर को उस वक्त तक उसने जाना नहीं था. He had not known him at all. Who is he? वो तो ये नहीं जानता था कि वो कौन है. That was his first introduction. लेकिन वो उसकी सबसे पहली मुलाकात थी. And here और यहाँ पर he is telling the Lord, वो परमेश्वर से कहता है yet at thy word लेकिन आपके शब्द पर we will cast out. हम जाले डालेंगे. And he does it. और वो करता है. This shows Peter, though he was haphazard, though he was crazy, though he was always in a hurry, though he was always overexcited, he was humble. और ये दिखाता है कि पतरस जो था वो आड़ा टेढ़ा होते हुए सभी चीजें जल्दबाजी में करता था लेकिन फिर भी वो नम्र है. He had some humility in him. उसमें कुछ तो नम्रता थी. To listen from a total stranger. कि जिसे वो पहचानता नहीं था, एक अजनबी का सुनना. It shows a great amount of humility actually. और वैसा देखा गया तो ये बहुत ही उसमें बहुत मान तरीके से नम्रता है. You would have asked Jesus, do you know to fish? Have you ever caught a fish in your lifetime? वो यीशु से ये भी बोल सकता था कि क्या तूने तेरी जिंदगी में कभी तूने मच्छी पकड़े हैं? अभी तक एक मछली पकड़ा है क्या तूने? एक भी पकड़ा है क्या? तेरा क्या रे बायोडाटा क्या है? रिज्यूमे क्या है तेरा? कौन है तू? ये क्या है? अच्छा. Okay, so you are a carpenter. हाँ. अब तू मेरे को सिखाएगा मछली पकड़ना. तू जाले तो डाल. अरे क्या जाले? तू पहला जा बेंच बना, मेरे को सिखाता है. रात भर हमने इधर आवा है, कुछ पकड़ा नहीं, इधर हमको सिखाते हैं. इसलिए तो बोल रहा जाले डाल. आज तेरे को क्या मतलब नाव बनाने को आता है? तेरे को नाव जो है वो मैंने ही बनाया. अरे क्या जा घर पे. Now he was not like that. देखो वो वैसा नहीं था. He was ready to listen. A total stranger. वो एक अजनबी से भी सुनने के लिए वो तैयार था. Now listen, next point is, अब सुनो अगला मुद्दा the ये है. humble man allows God, or rather gives way to God. देखो एक नम्र इंसान जो है वो खुदा को अनुमति देता है या फिर उसके लिए रास्ता दे देता है. Yeah, he tells the Lord to do his will in his life. वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी कर. Yeah, he tells the Lord, here am I, and Lord, let thy will be done. वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर मैं हूँ यहाँ और तेरी इच्छा पूरी हो जाए. Many times, people like me or people who are called of God, they have a dream. I will go and preach the word, or in San Francisco. और मेरे जैसे जो लोग हैं वो हमेशा हम एक ऐसा ख्वाब रखते हैं कि मैं एक दिन जाऊंगा और सैन फ्रांसिस्को में मैं संदेश दूंगा. I will go and preach in Mexico. मैं मेहिको में जाकर संदेश दूंगा. I will go and preach in Honolulu. मैं होनोलुलु में जाकर संदेश दूंगा. I will go and preach in New York. मैं न्यूयॉर्क में जाकर संदेश दूंगा. I will preach in France. मैं फ्रांस में संदेश दूंगा. I will preach in not Dubai, not Saudi Arabia. No. I will preach not China. No. Not Russia. No. Cancel, delete. I will preach which that place? Florida. और मैं दुबई नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, चाइना नहीं, इन जगहों पे नहीं, रशिया नहीं, बिल्कुल नहीं. और लेकिन फ्लोरिडा में जाके मैं संदेश दूंगा. I will North Korea, no coach. I will preach not North Korea. I will preach in South Korea. और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं जाके साउथ कोरिया में संदेश दूंगा. This is not, if you are humble. Sorry, neighbor.
देखो ये आपका आपके बाद बाजू वाला जो वो ऐसे नहीं है। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला. What did I say? If you are not, no sorry. अगर आप नहीं माफ कीजिए, आपके बाजू वाला If he is humble, अगर वो नम्र है, you are super humble. आप तो बहुत ही You ज्यादा are- नम्र हो। You are humbled and tumbled already. आप नम्र बम्र सब बंद कर आप निकल चुके हो। If your neighbor is humble, लेकिन अगर आपका बाजू वाला नम्र है, a humble man allows God. तो एक नम्र इंसान जो है वो खुदा को अनुमति देता है। Yeah, or rather gives way to God, allows God and says, Lord, not my will but yours be done. He allows God to work in and through his life the way God wants to use him. और एक नम्र इंसान जो है वो परमेश्वर को रास्ता दे देता है और कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, जैसा तू चाहता है वैसे तू कर मेरे जिंदगी में और मेरे जिंदगी में और मेरे जिंदगी के द्वारा भी। This is the biggest trial that every single servant of God has faces in his or her life. और ये जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा है जो एक परमेश्वर का सेवक उसके जिंदगी में गुजरता है। Yeah, because why? क्यों? क्योंकि Come on, let us be honest. We have our own plans also. चलो हमें सच्चा रहना चाहिए, हमारे खुद के भी चलो योजना हम सच्चे रहे, हम ये भी बताएंगे कि हमारे खुद की भी योजनाएं होती है, हम खुद की भी प्लानिंग करते कि मैं ऐसा करूंगा, इनका करूंगा, ये एज में मैं इस साल में मैं 2020 में आई विल गो एंड प्रीच इन अमेरिका. और 2020 में मैं अमेरिका में जाके संदेश दूंगा। My tickets are booked, my visa is done and I am staying still in Pune. और मेरे टिकट जो है वो बुक हो चुके हैं और मेरा वीजा जो है वो भी छप के आ चुका है, लेकिन आज भी मैं पुणे में ही रह रहा Now हूँ। it is month of August and I am not in America and I am still in Pune. और अब अगस्त का महीना है और आज भी मैं अमेरिका में नहीं हूँ, मैं आज भी पुणे में हूँ। वीजा स्टॅम्प होऊन आला होता रे, पण a humble man allows God. एक नम्र इंसान खुदा को रास्ता दे देता है। Yeah, it's very, 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 very important. ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। No, I like him. I want to marry him. नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे इससे शादी करना है, I want to marry him. मुझे इसी से शादी करना है, I want to marry him. मुझे इसी से शादी करना है। Oh Lord, I want to marry him. हे परमेश्वर, मुझे इसी से शादी करना है। Praise Lord, I want to marry him. हाँ, परमेश्वर, मुझे इसी से शादी करना है। Sister, are you humble? बहन, क्या आप नम्र हो? Yes, I'm very humble. I'm very humble. I'm so humble. I walk like that. हाँ, मैं बहुत ही नम्र हूँ, मैं बहुत ही नम्र हूँ, मैं इतना नम्र हूँ कि मैं इतनी नम्री हूँ, इतनी नम्री हूँ। इतनी नम्र हूँ कि मैं ऐसे ही चलती हूँ। Yeah, I'm very humble. और मैं बहुत ही नम्र But हूँ, I want to marry him. लेकिन मुझे इसी से शादी करना है। If you are humble, you'll allow God to work. अगर आप नम्र हो तो आप परमेश्वर को अनुमति दोगे कार्य करने के लिए। Rather gives way to God. और मैं तो ऐसा कहूँगा कि परमेश्वर को रास्ता दे देता है कार्य करने के लिए। परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा. I remember Brother Samson also, awesome singer of the Lord, that song. What is this? Can you just sing that soon? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, चाहे दुख आए या हो मायूसी, बेकरारी हो या हो बेबसी, चाहे दुख आए या हो मायूसी, बेकरारी हो या हो बेबसी, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Humble person. एक नम्र व्यक्ति। Amen. Amen. Next point. अब A अगला humble मुद्दा। person stays no matter what is happening. He stays no matter what is going on. He stays no matter how terrible it may be. He stays no matter how bad it may be. He stays whether he understands or doesn't understand. He doesn't leave his or her location. That's a humble personality. Hallelujah. देखो, एक नम्र इंसान जो है वो टिके रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो, कितने भी बुरे हो, वो एक नम्र व्यक्ति जो है वो
उसकी जगह नहीं छोड़ता और वहीं पर वो टिके रहता है। This is called as a humble personality's biggest sign. और इसे कहते हैं एक नम्र इंसान, और यही तो सबसे बड़ा चिन्ह है। Whenever you don't understand what's happening around you, what's happening in your life, people have the habit to eject patak. और जब कभी आप ये समझ में नहीं आता कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो बहुत लोग जो है तुरंत ही इजेक्ट करते हैं, पटक। They have a habit. उन्हें एक आदत है उस जगह से निकल जाना। When I remember in my time, I'm not very old as it is, but in my time we had tape recorders. और देखो, मैं वैसे बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हमारे जमाने में बहुत नहीं, बूढ़ा हुई नहीं मैं बूढ़ा हुई नहीं, लेकिन हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। हमारे जमाने में we had tape recorders. हमारे पास टेप रिकॉर्डर होते थे। And when we had to change the side or change the tape. और जब हमें उसके दूसरे भाग को सुनना था या फिर टेप को चेंज करना था, we had to press a button. हमें एक बटन दबाना पड़ता था, eject. And the moment we press eject, और जैसे हम eject दबाते थे, the mouth of the tape recorder will open. वो टेप रिकॉर्डर का जो मुंह था वो करके खुलता था, and the cassette would come outside. और वो कैसेट जो है वो फटाक करके बाहर आता था। Sometimes the spring would get spoiled. और कभी-कभी जो स्प्रिंग जो है वो खराब हो जाता था, and would give a big kick to the cassette. वो कैसेट को एक बड़ा लात मिलता था, and the cassette would come flying off. और वो कैसेट जो उड़ कर बाहर आता था, and we would catch the cassette. और हमें जाके वो कैसेट पकड़ना पड़ता था। Oh, I love those days. देखो, मुझे वो दिन बहुत पसंद थे। And you know that the tape would get caught in the spool. और कभी-कभी जो टेप जो है वो उसके रील में अटक जाता था, and we would remove it. और हम उसे निकालते थे। अरे कितना लंबा है अंदर इसके, keep on removing like पतंग का मांझा, How long this is, और पतंग के मांझा की तरह हम उसे निकालते ही रहते थे। and then afterwards switch to the pencil. और फिर पेंसिल लेकर उसे घुमा कर फिर लगा देते and थे। घुमाओ। You done it? Yeah. People of God. और परमेश्वर के लोगों, some people don't like it, I don't like what is happening here in this church. I don't like this pastor. I don't like the choir leader. I don't like that choir, that musician. I don't like the singers. I don't like this lady next to me. I don't like the brother next to me there. I don't like these people here sitting around here. And come on, nobody is good. और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कलीसिया में होते हैं और वो कहते हैं मुझे पास्टर बिल्कुल पसंद नहीं, वो जो कॉयर लीडर है वो पसंद नहीं, और जो बजाता है वो भी मुझे पसंद नहीं, और जो कॉयर के जो लड़के हैं वो भी मुझे पसंद नहीं, और मेरे बाजू में जो औरत है ये भी मुझे पसंद है। अरे ये क्या है? But he goes and she goes to work in an office. And he likes everybody there. लेकिन वो एक ऑफिस में जाके काम करते हैं और वहां पर तो सभी को पसंद करते हैं। And if he doesn't like anybody, or anyway if he doesn't like anybody, और अगर वो कोई भी उसे पसंद ना हो तो भी he still goes to work in the same office. वो फिर भी उसी ऑफिस में काम को जाते हैं। And still sends his children to the same school where the kids, he doesn't like the kids also there. और उसके खुद के बच्चों को भी उसी स्कूल में भेजता है जिस स्कूल के बच्चों को वो पसंद भी नहीं करता, फिर भी उन्हें वहां पे भेजता है। उसी क्लास में बिठाता है जहां पर वो बच्चे मस्तीखोर होते हैं। But लेकिन only church he will leave. सिर्फ कलीसिया को छोड़ देगा। Why? क्यों? I don't like anybody here. मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं, Nobody is good here. यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। I know one place where everyone are good. No place? I know one place. मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पर सभी जन अच्छे हैं। Graveyard. कब्रिस्तान Best place. सबसे बेहतरीन जगह। I'm telling you. मैं आपको बताता हूँ, So many times I've been there. मैं कितने तो बार वहां गया हूँ। खरं सांगतो, मी एकाला भांडण करताना पाहिलेलं नाही. I'll tell you the truth. No one fights over there. Yeah, everybody is perfectly sleeping there. You can go there. वहां पर सभी जन परिपूर्ण तरीके से सोए हुए हैं, आप वहां जरूर जा सकते हो। Dig one hole, go to sleep. वहां पर एक खड्डा आप खोद लो और वहां पर सो जाओ। नहीं वैसा नहीं, and go to sleep. और सो जाओ। Yeah, no one will be bad. Everyone will be good. वहां पर कोई भी बुरा नहीं होगा, सभी जन अच्छे हो गए। Because everyone are dead. क्योंकि सभी जन मरे हुए हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, a humble person stays. एक नम्र इंसान जो है वो टिके रहता है। मला ही नाही आवडत, मला ती नाही आवडत,
मला तो नाही आवडत, मी चालले सोडून. Something is wrong. Not you, your neighbor. कुछ तो गलत है. आप में नहीं, आपके बाजू वाले में. You are humblest. You are humblest. आप तो सबसे नम्र हो. Yeah, even Jesus feels ashamed looking at you, looking at your humility. आपकी नम्रता के पास देखकर यीशु को भी शर्मिंदगी आती है. या इस समय हम्बल क्यों नहीं हुआ? Come on, let me go ahead. चलो Last point. आगे जाने दो. आखिरी मुद्दा. A humble person goes through. Hallelujah. और एक नम्र इंसान जो है वो रास्ते को पूरा करता है. Amen. This is so important. और ये कितना महत्वपूर्ण है. You know, it's not easy. You know, when we are called of God, the journey is really not understood. Let me tell you, I tell you by my experience, it's really not understood. और देखो, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो जो सफर है वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता. मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जो सफर है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता. I still don't know why I went to that Tisgaon. और मुझे आज तक पता नहीं कि मैं तीसगांव क्यों गया. I really don't know why I went there. और मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं वहां पर ही क्यों गया. The day I leave this body and I meet the Lord Jesus Christ, that day, the first question when I see him face to face, I'm going to ask him only one question: why did I go to Tisgaon? You tell me that first. और जिस दिन को मैं शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा और परमेश्वर को सामने मिलूंगा, मेरा सबसे पहला सवाल मैं परमेश्वर से यही पूछूंगा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे तीसगांव को क्यों भेजा. उसमें कभी मैंने तीसगांव देखे भी नहीं, एक बार भी नहीं देखा तुमने तीसगांव, लेकिन उधर क्यों भेजा मुझे? Why did you send me there? आपने मुझे वहां पर क्यों भेजा? What did I learn there? I still don't know what did I learn there. वहां पर जाकर मैंने क्या सीखा, आज तक मुझे पता नहीं कि वहां पर मैंने क्या सीखा. Only one thing good happened. बस एक ही चीज अच्छा हुआ, that I learned Marathi there. कि वहां पर मैं मराठी सीखा. I don't know why. और मैं नहीं जानता क्यों. If I have to learn Marathi and I'm not preaching in Marathi, come on, what am I doing? चलो, अगर मैंने मराठी सीखा है और मैं मराठी में संदेश देता ही नहीं हूँ, तो फिर चलो यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ मैं? I don't understand anything. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता. I don't understand. You know, why am I like this? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे क्यों हूँ. Come on, you know, I've got so many questions, but prominent question: why did I go to that place called Tisgaon? I don't know. It may be a mistake of mine. I don't know. I really don't know. God allowed my mistake to be there. For how many years I was there? 7, 8? I don't know. Crazy. Why did I go to the Jalgaon? और मेरे बहुत सारे सवाल है, और सभी सवालों के सबसे पहला सवाल ये है कि मैं वो तीसगांव में क्यों गया समझ में नहीं आता. शायद मेरी गलती होगी, तो शायद परमेश्वर ने वो परवाना दिया मुझे वो गलती से गुजरने के लिए. मैं शायद 7-8 साल वहीं पर था, और एक साल में जलगांव क्यों गया. Why did I go to Jalgaon? मैं जलगांव में क्यों गया? जहाँ लोग जलते हैं वहां पर क्यों गया? I don't know why. मैं वहां पर क्यों गया, मुझे पता ही नहीं. That's the burning village. वहां पर तो लोग जलते हैं. Yeah, burning village. जलता हुआ जलगांव. Yeah, burning village. जलगांव. I thought it is Jalgaon. मुझे लगा वो जलगांव है. Yeah, where there'll be a lot of water. I didn't see any drop of water there. मुझे ऐसा लगा कि वहां पर बहुत सारा पानी होगा. वहां पर तो मैंने पानी का एक बूंद भी नहीं देखा. And then I understood it is Jalgaon. उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो जलगांव. Fire village is hot. It's hot there. अग्नि का गांव है वो. वहां पर बहुत ही गर्म. Why did I go there? मैं वहां क्यों गया? I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों. I still don't know why. मुझे आज तक नहीं पता क्यों. Let me tell you. मुझे आपको बताने दो. But one thing I know. लेकिन एक चीज मुझे A humble person goes through. कि जो एक नम्र इंसान है वो रास्ता पार करता है. Whether you understand or don't understand, why are you here? Why am I with him? Why am I with him? Why am I with him? Why am I with her? Why am I with her? Why am I with all these people here? I don't know. और कुछ पता नहीं. एक नम्र इंसान जो है वो उसे पता भी नहीं, उसके सफर में उसे समझ में नहीं आता कि मैं इनके साथ क्यों हूँ, मैं इसके साथ क्यों हूँ, मैं इसके साथ क्यों हूँ, मैं उसके साथ क्यों हूँ, मैं इसके साथ क्यों. और ये सारे लोग जो यहाँ पर है, मैं इन लोगों के साथ
साथ यहाँ पर क्यों हूँ? Why am I here? What am I doing here? What am I learning here? I don't know. मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? और यहाँ पर मैं क्या सीख रहा हूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are chosen of God, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, the one prominent thing that He's going to do is it's smoothing process over your life. एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर आपके जिंदगी पे करने वाला है, और वो है आपको चिकना बनाना। Gulgulit banana, gulgulit. You know? चिकना बनाना, चिकना। God, let me tell you, people, the smoothing process is not done by, chiseling and wrapping and flapping. No, He takes you in His hand and starts. और जो चिकना बनाने की ये जो प्रक्रिया है, ये छन्नी लेकर नहीं और बड़े बड़े चीजों को लेकर नहीं, लेकिन वो आपको हाथों में लेता है। और When I was in school, जब मैं स्कूल में था, only twice I joined classes. और 2 ही बार मैंने ट्यूशन लगाया था। Yeah. Once when I had failed in 6th standard, don't tell anybody. I failed in 6th standard. एक बार जब मैं 6वीं में फेल हुआ था, किसी से कहना नहीं कि मैं 6वीं में फेल हुआ। Can you imagine does anyone fail in 6th standard? I failed. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई 6वीं में फेल हो सकता है? मैं फेल हुआ। I failed in 6th standard. Who fails in 6th standard? मैं 6वीं में फेल, 6वीं में कौन फेल होता है? I failed there. मैं वहां पर फेल हुआ। Come on. चलो। That time I had one teacher whom I used to hate, and my mom put me to her class, private tuition, Mrs. Miranda. और एक टीचर थी जिससे मुझे बहुत नफरत होती थी, और मेरे माँ ने मुझे उसी के प्राइवेट ट्यूशंस में भेज दिया। When she told me you have to go for private tuition, I went, wait a minute. 3 times I went for tuitions. 3 times. चल एक मिनट, मैं 3 बार ट्यूशंस के लिए गया। One time I love to go for the private tuition. और एक बार जो है मुझे प्राइवेट ट्यूशन में जाने को बहुत पसंद आता था। That was in 10th standard. और वो 10वीं में था। Yeah. Second, before that was. Sorry, wait a minute. No, I'll tell you. The 3 private tuitions. The one was in 9th standard. और 3 प्राइवेट ट्यूशन, और एक जो था वो 9वीं में था। 9th, I should love to go for the private tuition. और 9वीं में जो था मुझे और प्राइवेट ट्यूशन में जाने, वो उस प्राइवेट ट्यूशन में जाने मुझे बहुत पसंद आता था। I went from on a cycle from Dongri Umarkhadi till Dadar Parel. और मैं on a cycle. और मैं साइकिल पर डोंगरी उमरखाड़ी से लेकर दादर परेल तक मैं साइकिल चलाते हुए जाता था। एक ही बार गया। अच्छा, एक ही बार साइकिल पे मैं एक ही बार गया। बाकी पे बस में गया, बट एक दिन के लिए, पहले दिन के लिए वो साइकिल पे गया टिल परेल, बिकॉज I loved that tuition. और एक दिन के लिए मैं साइकिल, सबसे पहले दिन के लिए जो मैं साइकिल पे गया डोंगरी से लेकर परेल तक मैं साइकिल पे गया। क्यों? क्योंकि मुझे वो ट्यूशन बहुत पसंद। I was crazy after the tuition class. देखो उस ट्यूशन क्लास के पीछे मैं तो पागल हो चुका था। Yeah, and I went, imagine what a haushini cycle वर गेलो तिथं मी. Crazy, कल्पना करो, मैं तो पागल था। Now, second tuition class was for maths and science in 10th standard. और दूसरा ट्यूशन क्लास जो था वो मैथ्स और साइंस। I did third one. तीसरा जो था वो मैथ्स एंड साइंस के लिए था, वो भी 10वीं में। And the first one, और जो सबसे पहला वाला, that was 6th standard, वो 6वीं में था, and that was private tuition. और वो प्राइवेट ट्यूशन था। Even the second one was private tuition. और दूसरा वाला जो था 9वीं का, वो भी प्राइवेट ट्यूशन था। But the first one was also private tuition. लेकिन पहले वाला जो था वो भी प्राइवेट ट्यूशन। And I hate that word, private tuition. और वो जो शब्द है प्राइवेट ट्यूशन, इससे मैं नफरत करता हूँ। Even आज भी करता हूँ मैं. Because in private tuitions, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन you can't do masti. आप मस्ती नहीं कर सकते। You are alone. आप अकेले होते हो। And teacher has no other work but you. और टीचर को और कोई काम नहीं, लेकिन आप ही हो। And teacher looks nowhere but you. और टीचर और कहीं, लेकिन आप ही के पास देखते रहती है। And teacher whole attention is on you. और टीचर का पूरा ध्यान आप ही पर होता है। And you have no thing to do. और आपके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए।
not even poke pencil here and there. और पेंसिल को लेके यहाँ वहाँ भी आप सोच नहीं सकते. सोच नहीं सकते. You can't even throw rubber here and there. आप रबर को लेके यहाँ वहाँ भी नहीं फेंक सकते. You can't even, make paper cup rocket and throw here and there. आप पेपर का रॉकेट बना के यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते. You cannot, even give tapli to another boy. आप किसी और को टपली भी नहीं मार सकते. You cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते. You are right under her nose. आप उसके नाक Smelling, dropping corona full nose. और उसके नाक से जो कोरोना बह रहा है और बदबू आ रही है उसके नाक की उसी के नाक के नीचे आप बैठे रहते हो. And you're looking at her like this. और आप उसके पास देखते रहते हैं. And she's there. और वो कहते हैं पढ़ाई कर. Private tuition. I hate it. I tell you, I hate it. I hate it. I hate it. I hate it. प्राइवेट ट्यूशन मैं आपको बताता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ. मैं नफरत करता हूँ. But God takes private tuition for those who want to get smoothened. लेकिन परमेश्वर जो है उनका प्राइवेट ट्यूशन लेता है जो चिकने बनना चाहते हैं. Are you that stone? क्या आप वो पत्थर हो? Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen.